This is minus 0.5. And then you will go for the 9. 9 is the last column, I'm sure. What is the property area? 0.2776. 0.2776. Okay, अब subtract कीजिए. The bigger area was 0.9911 and you subtract this area 0.2776. बताइए क्या आंसर आ रहा है? Just subtract. What is the answer? Hurry up, hurry up. Use your calculators. Sir, 0.7135. 0.6334. गलत आंसर बता रहा है सेकंड मैन. कौन है सेकंड लड़की? कोई गलत बोल रही. पहली वाली ठीक थी. Who was the 0.7135. 0.135 is right. देखिए ये आपके पास नजर आ रहा है आंसर 0.7135. तो इस ये जो दो स्टेप्स हैं ये आपने अपने करने हैं. डोंट फॉलो दीस टू स्टेप्स. ये मैंने दूसरी प्रॉपर्टी टेबल से किया था. आपको चूंकि अब इस टेबल को यूज करना है. यहाँ तक तो आपका ठीक है. अप टू दिस स्टेप इज ओके. बट अब आप देखेंगे एरिया अप टू दिस z इक्वल टू दिस मच, देन माइनस एरिया अप टू z इक्वल टू दिस मच, और फिर ये दोनों वैल्यूज आप लिखेंगे. ओके, लिखा आपने? ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन 0.99. सर लेकिन यहाँ पे आपने प्लस कैसे किया हुआ है? आप मेरी बात छोड़ दें, मैंने मना नहीं किया आपको. इसको मत देखें आप. ओके सर. ये दूसरी टेबल बता तो रहा हूँ कि दूसरी टेबल यूज की है मैंने. वहां पे ठीक है एरिया, सर, ठीक. वहां पे एरिया z इक्वल टू 0 से शुरू करता है. मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस लाइन को आपने नहीं यूज करना. आप मेरी तमाम सब को जी. छोड़ दें. यहाँ तक ठीक है, इसके बाद आप खुद करें. ओके सर. आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 9. आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर बुक. देखिए आपके पास तो है ना, उसको लाएं. अहमद जी अपना नाम हटाएं. क्या मसला है अहमद का? क्यों शर्म आ रही? जी सर. Who is Ahmed? मेरा नाम. सर मैं हाँ? सर मैं हूँ सर. अच्छा, जी. आप अपना नाम डिस्प्ले मत कीजिए, बस इसको स्क्रीन हमारी छुप रही है. सर वो गलती से हो गया हो. Okay, coming back to your question sheet. Okay, this is question number 9 and 10 is exactly the same, so I am doing question number 9. इसमें देखिए गौर से. The average yearly cost per household of owning a dog is $186.80. Average cost है, so this is mu. Okay, suppose that we randomly select 50 households. ये क्या हो गया? Sample size. This is denoted with n. आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूं ताकि आप जब खुद पढ़ें तो आपको पता चलना चाहिए सिंबल हमने कौन से यूज करते हैं. That own a dog. What is the probability that the sample mean for these 50 households is less than $1.175? Assume sigma is $32. So data is completely given to you. और यहाँ लेस देन है तो ये कौन सी टेल हो गई? लेफ्ट टेल हो गई. याद रखिएगा. अगर ग्रेटर बोलेगा तो राइट टेल होगी. तो कहेगा बिटवीन दिस एंड दिस, तो बिटवीन टू वर्टिकल बार्स का केस होगा. एक चीजें आप लोग फौरन कंसीव कर लीजिए. प्रोसीड सॉल्यूशन आपके सामने होगा. This is your question number 9. The data was
Average yearly cost per household, mu is $186.80, n is 50, sigma is 32. और आपको मालूम क्या करना है, that the average of the sample is less than $175. This is you have to find. Now you are to change this x bar into z. The formula is x bar minus mu upon sigma over root n. फर्क आ गया ना ये इस फॉर्मूले में. Keep in mind, this formula will be used when sample size is given. Okay, this is the difference. And here is the x bar value given. Put the value of x bar 175, mu 186.80 upon sigma is root 32 and divided by root 50. After simplifying, you should know that you should calculate correctly. The answer is coming to be minus 2.61. Now, the same expression you write here, and then you express this probability into z value. Now, x bar will be changed into z, and this value is changed into minus 2.61. This you have to do in every question. All the time, x bar value is to be changed into z value. After changing it into z value, then you have to see from your table. And now don't look these steps from my notes. I told you that this case is different. अब आपको तो बहुत आसान हो गया. It's a question where you just say thanks to Almighty, because this is the less than case. It's an extreme left case. You are just simply to locate this value from the table, and that will be your answer. देखिए ये वैल्यू आपने टेबल से देखनी है. आई एम ओपनिंग द टेबल बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज. क्या वैल्यू देखनी थी तो मुझे भूल ही गया. वैल्यू कौन सी देखनी है? माइनस लिख लो कहीं. सर -2.6 and 0.1. -2.6 और नीचे लिख लेंगे आप 0.01 जी. तो हॉरिजॉन्टली यू सी -2.6 -2.6 ये है. अब आप देख लें फर्स्ट रो पे, टॉप फर्स्ट रो, दिस इज -2.6 एंड 0.01 ये जीरो की वैल्यू होती है. ये 0.01 है. चेक कर 0.0045. 0.004. ये देखिए ये 0.01 के नीचे आ रही है ना. दिस इज 0.01. इसके नीचे आए और -2.6 के क्रॉस पर आए. where the two values cross. This is your answer. That's it. लिखो 0.0045 is the probability. है ना आसान. आप मेरे मेथड पे जाते तो वो लंबा पड़ जाता है. ये आसान है आपके लिए. आंसर इज 0.005. अब ये पंगा मत लेना जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. ये मेरी मजबूरी थी बिकॉज द बुक वाज सच. ओल्ड एडिशन है ना. क्वेश्चन 10 इज वेरी इजी. यू कैन डू योरसेल्फ. बस मैं कोई एक आध सवाल आपको और करा देता हूँ एंड देन ट्राई योर बेस्ट टू अटेंड सिमिलर क्वेश्चंस. कौन सा करा दो? लेफ्ट टेल तो आसान है. चलिए ये राइट टेल का कर लें. क्वेश्चन 11 कर लें और 15 कर लें. So I'm going through question number 11. ये आपके सामने on the top left corner. The mean weight of 18-year-old female is 126 pounds and the standard deviation is 15.7. If a sample of 25 females is selected, find the probability that the mean of the sample will be greater than 128.3 pounds. अब देखिए लफ्ज greater क्या बता रहा है? It is a right tail test. Lesser होता तो left tail हो जाता. Between this and these two values होती तो two vertical bars के दरम्यान आ जाता. Assume the variable is normally distributed. तो डेटा आप लिख लें. 18-year-old से तो हमें कोई मतलब नहीं है. मीन वेट कितना है? 126 पाउंड. तो म्यू और ये क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा. सैंपल साइज n is 25.
or is greater than, this is x bar value, that the mean of the sample, इसको x bar कहते हैं ना, लोग बोल रहे हैं ना ये, mean of the sample, this is x bar, it's greater than 128.3. आइए, this is question number 11 at the top. देखिए, the mean weight of the female is 126 pounds, sigma is this, and is 25. This you have to calculate, T x bar greater than 148.5. पहले इसको चेंज कीजिए x bar को z में, x bar minus mu upon sigma over root n. Insert all the values, you are getting 0.732. Okay, I'm sure you can calculate this. अब आप मेरे स्टेप को फॉलो मत कीजिएगा, पहले आप ये लिखें, दिस मच इज ऑल इक्वल टू, लिखें पहले लेफ्ट साइड सेम लिखें, राइट साइड भी लिखें, पी जेड ग्रेटर देन 0.732. इसके बाद ये स्टेप यूं लिख दें, एंड डोंट राइट द राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड आपने नहीं लिखनी. व्हाट यू हैव टू राइट, लुक हियर, योर एरिया इज ऑन द राइट एंड. तो आप क्या करेंगे कि यहाँ लेफ्ट टेल से स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल टेक द एरिया अप टू दिस वैल्यू ऑफ z. दिस मच वाइट एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू एंड द मोमेंट, बट योर बुक वाला आपको यहाँ से यहाँ तक देगा. आप निकाल लीजिए ये वैल्यू और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, शेडेड एरिया. ठीक है, तो आगे लिखें, द रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, लिखो लिखो, the required shaded area will be obtained by subtracting the area up to z equal to 0.732 from 1. You will take this area from this left extreme left tail to this z equal to 0.73. इस 2 को भी हटा दें, because we need only 2 digits after the decimal, 0.73. तो आप 1 में से इस एरिया को माइनस कीजिएगा. आप लिखें 1 माइनस, you write down 1 minus area up to z equal to 0.73. Have you written? लिखें. Yes, sir. Required shaded area will be equal to 1 minus area up to z equal to 0.73. Coming back to the table, आपका पॉजिटिव वैल्यू है, so you have to go to the next sheet. ये 0.7 आप देख रहे हैं at the bottom. The bottom row is 0.7673. और आप 0.3 पे जाएंगे, 0.3 है आप, तो 0.3 इसके नीचे आएंगे वर्टिकली और इसके हॉरिजॉन्टली, where the two lines cross each other, the answer is 0.7642. ये वो एरिया है जो आपको नहीं चाहिए, this is the white area, okay, and you have to subtract this area from 1. लिखें, now you write down 1 minus 0.7673, written 0.7673. अब आंसर बताइए, what is the answer? Gentlemen, tell me the answer. Sir, 0.2327. तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये है ना आंसर, 0.2327. ओके, सेम आंसर, तो आंसर इज ओके.
लिख लें 0.2327. Any problem to anybody? I don't want to proceed till you understand it well. आप पूछिए अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, आंखें बंद करके हाँ हाँ मत करते जाइए. सर वो जो आपने अभी बताया कि जेड टेबल में कि अभी हमने 2 की सीरीज में लेना है, तो वो आपने क्यों कहा था? क्या 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 कहा था, फिर से बोले. सर अभी जेड टेबल आप ओपन कर सकते हैं? हाँ बोले. सर इसमें जैसे हमने अभी लिया था ना 0.7 का सर, हाँ तो और 0.3, तो सर आपने ये क्यों कहा था कि 0.27642 को माइनस करना है? ये भी आपने अभी कहा था. ये वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे ना, इसलिए कहा था कि ये राइट टेल पर एरिया है. बार बार तो बता रहा हूँ. अच्छा. अगर जी लेफ्ट सर. टेल पे होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे. राइट टेल पे था ओके इसलिए सर. हाँ हमेशा बताया ठीक है आपको, सर. कोई नई बात तो नहीं बताई. ओके, थैंक यू सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं. 2 वर्टिकल बार्स के दरमियान है. क्वेश्चन 15 आई ओपन इट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. और इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस एक्सरसाइज से, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं. आपको आ जाना चाहिए, बात समझ में आ जानी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15 इज इन फ्रंट ऑफ यू. देखो, और बाकी सारे आपने करने हैं. ये वाला पेपर, ये जो क्वेश्चन 22 नजर आ रहा है ना, ये मैंने लास्ट टाइम पेपर में दिया था. तो दिस आई विल बी लीविंग फॉर यू. ये पूरी एक्सरसाइज आप खुद कीजिएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली वन स्टैंडर्ड फार्मूला. आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा. चलो, इसमें देखिए 22 में क्या था, इंडिविजुअल सिलेक्टेड. तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जब बात इंडिविजुअल केस की होगी. और जब सैंपल की होगी तो फिर क्या होगा, फिर आएगा आपका x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ओवर रूट n. आ रही बात समझ में? ओके, राइट नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 15. द मीन स्कोर ऑफ ए डेक्सटेरिटी क्या है ये, चला गया. Dexterity test for 12-year-old is 30. ये mean score है. This is mu. Mu is 30. The standard deviation is 5. If a psychologist administers the test to a class of 22 students, this is the sample size n. समझ आ रही बात? Find the probability that the mean of the sample will be between 27 and 31. ये x bar है. X bar is lying between 27 to 31. तो 2 x bars आ गए आपके पास. ये x1 बार हो गया और ये x2 बार हो गया. Assume the variable is not well distributed. तो आपने मालूम करना है find the probability. चलिए ये probability निकाला. तो as usual हमने पहले भी ऐसा सवाल किया हुआ है. This is question number 15. देखें, the mean score test is mu 30, sigma 55, and is 22. और ये आपको मालूम करना है probability that the mean of the sample lies between 27 to 31. The two Z1 and Z2 you are to calculate. For Z1 you will be taking X1 bar as 27, and for Z2 you will be taking X2 bar as 31. The remaining values are same, 35, 22. Calculate कीजिए. Z1 value is coming to be minus 2.81. Z2 value is coming to be 0.9381. Okay. So I told you that you must draw the figure. अब आप ये एक नॉर्मल कर्व बना लीजिए. One value is with negative sign, so negative sign will come on the left half. ये zero center में आता है, so you draw it on the left half. You say this is Z1 value, and the other value is 0.9381. इसको राउंड ऑफ करें, मैंने कहा था ना डेसिमल के बाद इसको राउंड ऑफ करें अप टू 2 डिजिट्स. ये क्या हो जाएगा 0.94. डेसिमल के बाद ये भी 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद ये भी 2 डिजिट्स. अब आसान है, आपको टेबल से देखना. ओके, नाउ माय एक्स बार वैल्यूज वर दिस, ये जो आपको पूछा गया था, एंड दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जेड वैल्यूज लाइक दिस. इसके बाद ये स्टेप लिखना मैंडेटरी है, हमेशा लिखिएगा.
जरूरी है, फिगर बनाना जरूरी है। अब इसके बाद ये मेरे स्टेप्स करना जरूरी नहीं है, अब जो मैं लिखा हूं वो करेंगे। आप बताएं विच एरिया इज बिगर, बोले ऑल ऑफ यू जी। सर ग्रेटर 1 अब आप पहले लिखें, 0.9381। हाँ लिखें, पहले लिखें शेडेड एरिया विल बी इक्वल टू, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, शेडेड एरिया इक्वल्स एरिया अप टू z इक्वल टू 0.94, लिखा एरिया अप टू z इक्वल टू 0.94 माइनस, अब छोटा एरिया माइनस करेंगे, व्हाट इज दैट, एरिया अप टू z इक्वल टू, बोलो क्या है, -2.81। -2.81, शाबाश। दोबारा सुन लें दिस लाइन जो मैं आपको दिखाई, लेफ्ट पे लिखें आप शेडेड एरिया इक्वल्स, राइट पे लिखें एरिया अप टू z इक्वल टू 0.94 माइनस एरिया अप टू z इक्वल टू -2.81। डन हो गया। नाउ वी स्विच ओवर टू द टेबल, टेबल से वैल्यू देखिए। पहली वैल्यू पॉजिटिव है तो वी हैव टू सी दिस टेबल 0.94, ये 0.9 आपको नजर आ रहा है एट द बॉटम, इस सर बॉटम 0.8264। हाँ ये 0.9 और आपने 0.04 पे जाना है, ये 0.04 इधर से, इन दोनों के क्रॉस पे आंसर आ रहा है, लिखें 0.8264, ऑल ऑफ यू राइट डाउन 0.8264, लिखा। Is this value visible to everybody? This is again Yes, sir. 0.9 and 0.4, done। अब हम चलेंगे दूसरी वैल्यू पे माइनस करके -2.81, तो मैं पिछली वैल्यू पे पिछली टेबल पे आ रहा हूँ, -2.8, 2.8 और भी नीचे आ रहा है, ये बिल्कुल बॉटम पे रो देखिए, एट द बॉटम इज -2.8 और अगला हिस्सा कहाँ, 0025। हॉरिजॉन्टली क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल पे कौन Sir, सी one. वैल्यू, 0.01 भाई, वन नहीं 0.01 0.01, पूरा बात करें तो 0.01 और -2.8 के क्रॉस पे क्या आ रहा है, व्हाट वैल्यू, 0.0025 0.0025, तो यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू आपकी थी 0.8289। आप ऐड कर रही हैं सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, सर सब्ट्रैक्ट। तो 8 ऐड करने से आएगा, अकल की पुतली लड़की, सर एक सेकंड। हाँ सॉरी बाद में कह लेना, पहले पाँव पे कुल्हाड़ी सर मार लो, नहीं, पहले 0.8239। पहले आप लोग को शौक के कुल्हाड़ी पाँव पे मार के टांग काट के फिर कहना सॉरी, अपनी ही टांग काटते हैं, कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट तो आप ऐड किए जा रहे हैं, क्या आंसर नहीं आया, सर एक्चुअली वो माइनस दो दफा आ गया था। 8239। नंबर 0 हो जाएंगे फिर एक्चुअली कुछ नहीं होता, 0 पॉइंट, सर 0.8239। 8239 शाबाश। देखो छोटी छोटी बातों को साफ साफ सुना करें, अल्लाह ताला ने कान अगर ठीक नहीं दिए हुए हैं, इसमें कोई गड़बड़ है, इसको पिचकारी करवाया करें, थोड़ा सा कानों में ना पिचकारी करवाना जरूरी होता है, फिर आवाज सही आती है। अच्छा अब थोड़ी देर में मेरा ख्याल है जब तक गाड़ी चल रही है चलते रहने दो, एक क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब तक ये ब्रेक आती है ना, और ब्रेक के बाद हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, और ये अभी आप ये सवाल करें जो मैं दे रहा हूँ आपको। ओके, डू दिस क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैं डाटा आपको बता देता हूँ, अटेम्प्ट आप खुद करें। सो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, नोट डाउन। The average time it takes a group of adults to complete a certain achievement test is 46.2. ये क्या चीज है 46.2? बोलो बोलो क्या है ये? सर म्यू। म्यू लिखें, लिखे जाए डाटा साथ पे लिखे जाए, म्यू इज इक्वल टू
46.2 minutes. The standard deviation is 8 minutes. क्या है standard deviation? 8 8 किससे शो करते हैं? सिग्मा Sigma. Sigma is equal to 8 minutes. Assume that the variable is normally distributed. दो ही चीजें दी हुई हैं, अब तीसरी आपको हर पार्ट में मिलेगी. देखिए, A part. Find the probability that a randomly selected adult will complete the test in less than 43 minutes. A part पढ़ लिया आपने? इसमें एक अडल्ट की बात हो रही है, सैंपल की बात तो नहीं हो रही ना? बोलो. एक आदमी की बात हो रही है. तो जब एक आदमी की बात होती है तो हम z का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? लिखो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब शुरू कर दें. विल बी लेस देन 43 मिनट्स. आप पहले, यानी आपको मालूम क्या करना है वो लिखो, पी एक्स लेस देन 43. ये मालूम करना है ना, क्वेश्चन मार्क डाल दो. पी एक्स लेस देन 43 मालूम करना है ना आपको? बोलो हाँ या ना. जी सर. अब देखो सर आप रिपीट कर देंगे प्लीज, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी. लिखें पी एक्स लेस देन 43 ब्रैकेट में लिख लें. लिखा नहीं? आवाज आ रही नहीं आ रही? सर लिख दिया. लिख लिया. अब हमने एक्स को जेड में चेंज करना है. बोलो कौन सा फॉर्मूला? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. लिखिए जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये भी लिखा. अब एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 43 है, ये दिया हुआ है ना. 43. म्यू कितना था बताएं? 46.2. लिख लो. 46.2. लिख लो 46.2 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना था? 8 मिनट्स. 8. ठीक है, 8. अब सिंप्लीफाई करके बताओ, नेट आंसर बताओ मुझे. सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, आंसर नेगेटिव में आना चाहिए. बोलो. सर 0.45. 0.4 माइनस 0.4. माइनस. माइनस अगर आपने हटा दिया तो मैंने आपके नंबरों के साथ माइनस लगा देना है, फिर मत कहना कि हमें खबर नहीं हुई. ये माइनस को आप लोग अहमियत देते ही नहीं है. हाँ, अगर प्लस सर लिखा है माइनस, बोला था आपको माइनस नहीं, 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 0.45. नहीं, ये एक आवाज ऐसी आई थी जिसमें माइनस नहीं, दूसरी आवाज में माइनस आएगी. पहली आवाज किसकी थी? नहीं सर मैंने माइनस कहा था सर. देखा, अब बाद में यही कहते हैं सब लोग, मैंने यही कहा था जो आपने नहीं सुना, है ना. फिर वो मैंने सुना नहीं. ओके, अब नीचे दोबारा आ जाइए. लिखे लाइन पी एक्स बार, ना सॉरी एक्स है, इंडिविजुअल टर्म है ना. पी एक्स लेस देन 30 इज रिटन एज इक्वल टू पी जेड लेस देन माइनस 0.45. लिखा आपने. अब क्या लिखेंगे? P ब्रैकेट में लिखें Z लेस देन माइनस 0.45. और अब आप टेबल से देखिए इसकी वैल्यू माइनस 0.4, ये बिल्कुल बॉटम पे आपको नजर आ रहा है माइनस 0.4. और 0.05 कौन सा होगा? ये जीरो होता है. 1 2 3 4 5. 0.3264. लिख लो, लिख लो, लिख लो, बस ये आंसर है आपका. लिख दिया सर. 0.3264. और इसमें आप लोगों ने फिगर नहीं बनाई, अभी फिगर बनाए. एक नॉर्मल कर्व बनाए, सेंटर में लिखें z इक्वल टू 0 और लेफ्ट टेल पर एक z की वैल्यू लिखें माइनस 0.45 और उसको शेड कर दें, लेफ्ट टेल को शेड कर दें. गॉट इट? बोलो हाँ या ना. अब ये आप देख रहे हैं ए पार्ट इसमें मिक्स हो गया, ये सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के लिए था. नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन. अब आपने बी पार्ट करना है.
Find the probability if 50 randomly selected adults take the test, the mean time it takes the group to complete the test will be less than 43 minutes. फिर less than 43 है, less than है तो फिर कौन सा टेल आ गया? लेफ्ट टेल, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब आप बताइए यहाँ पे z का फॉर्मूला क्या लगेगा? व्हाट फॉर्मूला? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम ही जाया किया करें। Sir, Z is equals to x bar minus mu upon sigma upon n square root. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला आपको बताया था। अब इसमें आप वैल्यूज रखिए। व्हाट इज एक्स बार? ये दिया हुआ है ना, ये दैट द मीन टाइम, ये मीन टाइम है, ये एक्स बार है वहां, ठीक है। 43, म्यू इज सेम 46.2, कीप ऑन राइटिंग। सिग्मा इज योर 8 डिवाइडेड बाय रूट n, व्हाट इज n? 50। मुझे सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आया। कीप डूइंग। सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। 43 माइनस 46.2, ये ऊपर आ गया, नीचे आएगा 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50। जल्दी बताइए। सर -2.8293। देखते हैं, -2.89 8293। 8293। अब इसको डेसिमल के बाद दो डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो 2.83 हो जाएगा। यस जी सर। सर। -2.83 डन। अब आप आइए, यस सर। अब आप इसकी जरा फिगर बना लें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, सेंटर में z इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इधर आ जाइए, z इक्वल टू -2.83, और लेस देन है तो आप यस सर। तो लेफ्ट टेल शेड कर दीजिए और नीचे z की वैल्यू लिख दें -2.83 एंड लोकेट दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल। -2.8 आपने हॉरिजॉन्टली देखना है, ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है -2.8, और 0.03 जो होगा वो फोर्थ कॉलम होगा, 0.00023। लिख ले 0.003। हम नीचे लाके देख भी लेते हैं, हम ठीक कॉलम देख, हाँ ये 0.03 है ना, इसके नीचे आइए और -2.8 से हॉरिजॉन्टली जाइए, वेयर द टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, 0.003। ये आंसर हो गया आपका। यस सर। 0.0023। ये आपका बी पार्ट का आंसर खत्म हो गया। चलो वापस क्वेश्चन पे। ओके, सी पार्ट में क्या कह रहा है? डज इट सीम रीजनेबल दैट एन अडल्ट वुड फिनिश द टेस्ट इन लेस देन 43 मिनट्स? तो हाँ, एक आदमी कर सकता है ना 43 मिनट्स, इंडिविजुअल के लिए कोई मसला नहीं। इसका आंसर लिख रहे हैं, सी पार्ट का लिखें ऑल ऑफ यू, लिखिए यस इट सीम्स रीजनेबल that an adult would finish the test in less than 43 minutes. That an adult would finish the test in less than
43 minutes because it is within one standard deviation of the mean. Because it is within one standard deviation of the mean. यानी 34% है ना, आपको बताया था मैंने 34 वन स्टैंडर्ड डिवीजन में कितना एरिया आता था, कुछ याद है, भूल गया। 68%। टू स्टैंडर्ड डिवीजन में कितना एरिया आता था, 95%। 95%। और थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन में था 99.7%। याद आ रहा है ना। तो इसको अगर हम परसेंट भी बनाए तो 34 ये विद इन वन स्टैंडर्ड डिवीजन में आ रहा है इसका रिजल्ट, तो इट इज सीम्स रीजनेबल। अच्छा डी पार्ट में बताइए, does it seem reasonable that the mean of the 50 adults could be less than 43 minutes? क्या आंसर आया आपका? आपका आंसर भी निकाला है ना बी पार्ट में, 0.0023। हाँ लिखो लिखो 0.0023। अब इसको जरा परसेंटेज में चेंज करें तो क्या बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई करो